ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ روزینہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے لیے جب امریکہ سے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اس نے جب اسے دیکھا تو وہ ہینڈسم بھی تھا۔ تو روزینہ نے کہا کہ مجھے اسی شخص سے شادی کرنی ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہے اور میں بھی ڈاکٹر ہوں۔ امریکہ جا کر میں مزید اسپیشلائزیشن بھی کر سکتی ہوں، جو کہ میرا شوق اور خواب بھی ہے۔ روزینہ کے دادا اس وقت زندہ تھے۔ وہ اپنی پوتی کو اتنی دور بھیجنے پر راضی نہ تھے، جبکہ روزینہ کے پاپا صرف بیٹی کے حق میں بول رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کو سمجھانے لگے کہ بہت سی ایسی بچیاں ڈاکٹر ہیں جن کو ہم پیشہ ڈاکٹر کے رشتے نہیں ملتے، اور پھر ان کو کسی انجینئر وغیرہ سے مجبوراً شادی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ مزید ڈاکٹری میں اسپیشلائز کریں تو بقول لڑکے والوں کے اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، اور لڑکا چاہے 40 کا ہو مگر لڑکی وہ لوگ چھوٹی ہی ڈھونڈتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا، اس نے بچی کی فرمائش پوری کی اور اسے مزید پڑھنے اور اسپیشلائز کرنے دیا۔ مزید 5 سال اور گزر گئے۔ بچی کی ضد تھی کہ اس کا خواب ہے اور شادی کرنے کے بعد سسرال والے کب آگے پڑھنے دیتے ہیں، مگر اس کی چھوٹی بہنوں کے ڈر سے انہوں نے وقت پر شادیاں کر دی، اور اس بڑی بچی کا رشتہ ابھی تک نہ ہو سکا۔ تب دادا مجبور ہو گئے اور روزینہ کے بھائی سے شاندار جہیز دینا چاہتے تھے، مگر روزینہ نے کہا کہ مجھے جہیز مت دیں، چند جوڑے کپڑوں کے اور زیورات دے دیں۔ اس کے سسرال والوں کا ایک بڑا سا شاندار گھر تھا، مگر وہ بھی اپنے آبائی گاؤں میں، چونکہ وہ لوگ بھی دیہاتی تھے اور ایک یہی بیٹا ان کا پڑھا لکھا تھا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے گھر ساز و سامان کی کمی نہیں، ہم نے ابھی نیا گھر تعمیر کروایا ہے اور اس میں ساز و سامان بھی بیٹے نے نیا اور جدید خریدا ہے۔ دادا پھر قدر احتجاج کرتے کہ ان کا مستقل ٹھکانہ گاؤں میں ہی ہے، اور جب وہ امریکہ سے پاکستان مستقل رہنے آئے گی تو اسے وہ لوگ گاؤں میں ہی رکھیں گے، کہ جب ہمارا اتنا پیارا اور بڑا گھر موجود ہے تو پھر شہر میں وہ پیسے خرچ کر کے گھر کیوں بنوائیں گے۔ وہ ہے بھی ان کا اکلوتا بیٹا، باقی 3 بہنیں وہ بھی گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ میری پوتی ہمیشہ کے لیے گاؤں کی ہو کر رہ جائے گی۔ تو روزینہ کے پاپا نے تسلی دیتے ہوئے روزینہ کے دادا سے کہا کہ جب وہ پڑھنے اور پھر جاب کرنے کے لیے بیٹے کو امریکہ رہنے دے سکتے ہیں تو شہر میں کیوں نہیں رہنے دیں گے۔ تو روزینہ کے دادا نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ملک سے دور تو بیٹے کو الگ رہنا گوارا کر سکتے ہیں، مگر پاکستان میں نہیں، اس لیے پاکستان میں شہر میں رہنے کی شرط شادی سے پہلے ہی ان کو بتا دینا۔ روزینہ کے باپ نے کہا کہ یہ مناسب بات نہیں لگتی، انہیں بہت سے اور بھی رشتے ہاتھوں ہاتھ مل رہے ہیں، ہم نے یہ شرط رکھی تو یہ رشتہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے اور دوبارہ ایسا رشتہ ملے نہ ملے اور ہماری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ تو ہماری روزینہ لڑکے کی ماں کو بہت بھا گئی تھی۔ روزینہ نے بھی کوئی بھی ڈیمانڈ ان سے کرنے سے منع کر دیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ لڑکے کے گھر والوں کو سونے کی گفٹس دے کے وہ بہت خوش ہوئے۔ روزینہ دلہن بن کے گاؤں آ گئی۔ 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کا شوہر امریکہ چلا گیا اور اسے گاؤں میں رہنے کی تاکید کر گیا کہ جب تک تمہارا امریکہ جانے کا ویزا نہیں لگتا تب تک تمہیں میرے والدین کے ساتھ ہی گاؤں میں رہنا پڑے گا۔ تم نے چونکہ میرے ساتھ امریکہ چلے جانا ہے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت تم نے ان کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم روز میکے بھاگی ہو، مہینے میں 1 بار تو میرے والدین کے ساتھ 1-2 دن کے لیے میکے جاؤ گی اور پھر جلد واپس آ جاؤ گی۔ تمہارے میکے سے تمہیں وہ لوگ چھوڑنے آ سکتے ہیں، لینے نہیں۔ یہ بات اب تم ہی سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بدنام کرتی پھرو۔ یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر میرے ساتھ بسنا ہے تو میری مرضی پر چلنا ہوگا۔ میری تینوں بہنوں کو میکے میں عزت اور مان دینا ہوگا۔ میرے والدین کی بہت خدمت کرنی پڑے گی۔ کسی کو بھی ناراض مت کرنا، ورنہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ مجھے وہ بیوی چاہیے جو میرے گھر والوں کو خوش رکھ سکے۔ مجھے ان کی طرف سے شکایت کا موقع نہ دینا۔ تمہیں امریکہ بلانے میں مجھے تقریباً 1 سال لگ جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اگر کام ہو گیا تو میری والدہ کی خواہش تھی کہ کم سے کم 1 سال میں بیوی کو ان کے پاس رہنے دوں، تاکہ وہ ہم سب کو اچھی طرح سے جان لے اور گھل مل سکے۔ روزینہ کو اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے بہت سی لڑکیاں دکھائی گئیں، مگر تم ان سب میں سب سے زیادہ مجھے بھا گئی۔ میں نے تمہیں دیکھتے ہی گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے اور میں نے صرف اسی سے شادی کرنی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ تم سب سے زیادہ میری ماں کو بھائی تھی، پھر بہنوں نے بھی تمہیں پسند کر لیا۔ اب میری پسند کی لاج رکھنا اور مجھے رشتہ داروں کے آگے شرمندہ نہ ہونے دینا، کیونکہ میرے رشتہ دار بھی مجھے رشتہ دینے پر بہت اصرار کر رہے تھے اور میں اپنی طرح کسی پڑھی لکھی شہری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی شرط ضروری نہ تھی، کیونکہ میں نے کون سا ان سے نوکری کروانی تھی۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، پھر میں اپنی بیوی کو نوکری کے لیے کیوں خوار کرتا پھروں۔ یہ سن کر روزینہ کے دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ تو مزید آگے پڑھ کر نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے شوہر کے خیالات تو بالکل الٹ تھے۔ اسے اپنے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ اسے روتا دیکھ کر بولا، موقع بے موقع رو رو کر گھر کا ماحول خراب کرنے والی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ رخصتی کے وقت بھی تم سب سے ایسے مل مل کے دھاڑے مار رہی تھی جیسے میں تمہیں بیاہ کر پھانسی کے تختے دار پر لے کر جا رہا ہوں۔ اگر اتنا ہی گھر والوں سے دور جانے کا غم تھا تو پھر شادی ہی کیوں کی تھی؟ بولو، کیا تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی؟ میرے ساتھ تم خوش تو ہونا؟ روزینہ نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کیوں خوش نہیں ہوں؟ آپ تو مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئے تھے۔ وہ خوش ہو کر بولا، پھر مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ تو نہ کرو گی کہ خاندان والوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے۔ اس کے شوہر جعفر نے اس کے ہاتھ پر پیار سے ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ اس کے پیار بھرے انداز سے خوش ہو گئی اور مسکرا کر بولی، وعدہ ہے میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گی اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، انشاءاللہ۔ اس نے خوش ہو کر اس کو منہ دکھائی ایک دل والا لاکٹ دیا اور بولا، یہ گلے میں ہر وقت پہنی رکھنا، اسے گلے سے اب اترنے نہیں چاہیے۔ اس نے اسے لاکٹ پہنایا، کافی بڑا اور بھاری لاکٹ تھا۔ روزینہ کو زیورات پہننے سے الجھن ہوتی تھی اور اس کے سسرال والوں نے اسے بھاری بھرکم زیورات پہنائے ہوئے تھے جن میں وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے اتنا بڑا سا لاکٹ، اسے اس کا ڈیزائن بھی پسند نہ آیا تھا، مگر یہ سوچ کر اس نے دل کو تسلی دے لی کہ چلو میرے شوہر نے میرے لیے بہت پیار سے پسند کر کے خریدا ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ کیسا لگا لاکٹ، تو اس نے بڑے جذبے سے کہا، بہت اچھا۔ تو جعفر خوشی سے بولا، میری ماں کی پسند ہے ہی بہت اچھی، میں تو کوئی اور چھوٹا سا پسند کر رہا تھا، مگر میری اماں نے ڈانٹ کر کہا، اتنا چھوٹا اور سستا سا میری اکلوتی بہو کو دو گے؟ تب انہوں نے خود ہی پسند کر کے مجھے یہ پکڑا دیا، اور چونکہ میں نے پسند کیا ہوتا تو تم سے خدا نخواستہ کبھی گم بھی ہو جاتا تو خیر تھی، مگر چونکہ مجھے اپنی ماں بہت عزیز ہے اور انہوں نے بہت پیار سے تمہارے لیے خریدا ہے تو اس لیے اسے اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت سے رکھنا۔ روزینہ نے حیرت اور دکھ سے سوچا کہ یہ تو اپنی ماں کا بہت پٹو لگتا ہے، یہ تو ماں کے پیچھے مجھے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اب ساری زندگی اس لاکٹ کو سنبھالنے اور پہننے کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اسے اپنے پاپا کی نصیحت یاد آ گئی کہ دیکھو بیٹی، تم میکے میں بہت ناز و نم میں پلی ہو، تم جب تک کنواری تھی تو لاڈلی تھی، مگر شادی کے بعد اگر تم روٹ کر یا خدا نخواستہ طلاق لے کر آئی تو باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی، اور اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ تم سسرال کی مرضی سے آؤ گی اور ان کی مرضی سے ہی سارے کام کرو گی۔ اب تمہیں میکے سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ میں نے تمہاری مرضی کے آگے اپنے سگے باپ تک کو ناراض کر دیا، زندگی میں پہلی بار ان کی نافرمانی کی۔ خود میں بھی تمہارا رشتہ پردیس میں اتنی دور دینا نہ چاہتا تھا، اور دوسرا یہ لوگ دیہاتی ہیں، ان کی سوچ بھی وہی ہے کہ روایات کی پابندی کرنی ہے، اور تمہیں اب ان کی روایات کو نبھانا ہوگا۔ مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ ماں باپ نے کیسی تربیت کی، جو شوہر کہے جیسا کہے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، اسے ناراض نہ کرنا، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب تمہارے ناز نخرے ادھر کوئی نہیں اٹھانے والا، سب تمہیں ایک مہمان کی طرح برتاؤ کریں گے۔ تمہاری ماں اور دادی وغیرہ جذباتی ہو کر تمہیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ رکنے کا بولیں گی، مگر جتنا شوہر اور سسرال والے رکنے دیں اتنا ہی رکنا، ضد نہ کرنا، اور اب اپنے سسرال والوں سے ہی گھل مل کر دل لگا کر رہنے کی کوشش کرنا، وہی تمہارے ہمیشہ کے لیے اپنے ہیں۔ ہم پرائے ہو گئے ہیں، ہمیں خوش کرنے کے لیے ان اپنوں کو ناراض مت کرنا، ورنہ زندگی گزارنا کٹھن ہو جائے گی۔ ہر کسی کو اہمیت دینا، تبھی تمہیں بھی اہمیت ملے گی۔ سمجھو کہ اب تمہارا کڑا امتحان شروع ہے، اس میں اگر تم پاس ہو گئے، سب کے دل جیت لیے، تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اسی سوچوں میں گم پا کر جعفر نے کہا، ارے میری خوبصورت سی دلہن کن خیالوں میں کھو گئی۔ اس کے ایسے جملے سے وہ خوش ہو گئی۔ وہ تو جلدی سو گیا تھا، مگر روزینہ کو دیر تک نیند نہ آئی، کیونکہ جعفر نے اسے بتا دیا تھا کہ ہمیں صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، ادھر یہی رواج ہے، اور تم نے سر سے دوپٹہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اتارنا۔ اسے تو دوپٹہ سر پر لینے کی عادت ہی نہ تھی۔ اس کی بھابیاں تو برقع اور نقاب کرتی تھیں، مگر اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔ بری میں اس کے سسرال والے برقع لائے تھے اور رخصتی کے وقت اسے پہنایا گیا تھا۔ روزینہ نے سوچا شاید گاؤں جانا اسی وجہ سے پہنایا جا رہا ہے۔ اس نے بغیر کسی ہیل و حجت کے فوراً پہن لیا تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے ہمیشہ ہی پہننا پڑے گا۔ وہ تو اپنے بھابیوں کو بھی اصرار کرتی رہتی تھی کہ یہ نہ پہنے، مگر وہ نہ مانتی تھی۔ وہ سو رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ اس کی شور سے آنکھ کھل گئی تو جعفر نے نیند بھری آنکھوں سے اسے گرج کر کہا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اماں ہوں کہ اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھولو اور سر پر دوپٹہ اوڑھو۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ اس میں گرجنے کی کیا بات تھی، خود بھی تو اٹھ کر کھول سکتا تھا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھ کر دروازہ کھولنے لگی تو باہر اس کی سب سے بڑی نند اور ساس کھڑی تھی۔ ساس نے بھی قدرے برہمی سے کہا کہ دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا ہے؟ تو جعفر نے اٹھ کر ماں کے پاؤں کو چھوا اور سلام کیا، ساتھ اسے بھی پاؤں چھونے کا اشارہ کرنے لگا۔ روزینہ نے ساس کے پاؤں کو چھوا اور سلام کیا۔ ساس نے پہلے بیڈ کا جائزہ لیا
और फिर मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। नंद ने भी उसे गले लगाकर प्यार किया। जाफर वॉशरूम जा चुका था। नंद के हाथों में भारी भरकम जोड़ा था। उसने कहा, भाभी इसे पहनकर जल्दी से तैयार होकर नाश्ते के लिए आ जाओ, नमाज का वक्त भी कम रह गया है। रोजीना की आंखें पहले ही नींद से बोझल हो रही थी, ऊपर से इतना हैवी जोड़ा देकर उसके उसान खता हो गए थे। सास ने उसे सारा जेवर उतरते देखकर कहा, तुम सुहागन हो, चूड़ियां हर वक्त तुम्हारे बाजू में होनी चाहिए और कान भी खाली ना हो। रोजीना ने हल्का सा एहतजाज करते हुए कहा, आंटी मुझे जेवरात पहनने की आदत नहीं है। तो सास ने नागवारी से कहा, शादी से पहले बहुत सी चीज़ों की आदत नहीं होती मगर करनी पड़ती हैं। नंद बाहर जा चुकी थी तो जाफर ने चलाकर कहा, मेरी माँ से बहस क्यों कर रही हो? यहाँ की रवायात हैं, जैसे वो कह रही हैं वैसे करो, अपनी धौंस क्यों जमा रही हो? सास उसे एक स्पार्ट सी नज़र देकर चुप करके खड़ी हो गई। जाफर ने रोजीना से कहा, मेरी माँ को पहले दिन ही नाराज़ कर दिया, चलो उनसे माफ़ी मांगो। वो हैरत से देखने लगी कि उसने कसूर क्या किया है जो माफ़ी मांगे, मगर जाफर के गुस्सीले चेहरे को देखकर झट से बोली, सॉरी आंटी। जाफर ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, ये अंग्रेजी की धौंस मेरी माँ पर मत जमाओ, सीधी तरह पाँव पकड़कर माफ़ी मांगो। रोजीना के आंसू निकल पड़े। झट पाँव पकड़कर बोली, आंटी माफ़ कर दें। वो गुस्से से बोली, ये पहली गलती समझकर माफ़ करती हूँ, आइंदा मुझसे ज़ुबान न चलाना। जाफर ने कहा, अगर दोबारा ऐसा होगा तो ये तलाक समेत घर से बाहर होगी, जहाँ से लाया हूँ वहीं छोड़ कर आऊँगा। वो आंसू साफ करने लगी तो सास बोली, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जाफर ने उसे रोता देकर कहा कि मैं ये आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सा तुम पर जुल्म का पहाड़ टूटा है? तुम्हारे वालिदैन ने तो तुम्हें जहेज में 7 गज लंबी जुबान भी दी है, पहले दिन ही शौहर और सास को नाराज़ कर दिया। ये तरबियत है उनकी। चलो अब नखरे दिखाना बंद करो, मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में तैयार होकर पहुँचो। वो बाथरूम में साथ साथ रोती रही और जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर सारा जेवर पहनकर बाहर आ गई। सब बैठे हुए थे, उसकी रोती सूरत थी। उसने सबको मुश्तरका सलाम किया तो दरमियान वाली नंद जल्दी से उठकर उसको गले लगाकर मिली तो जाफर ने उसे घूरते हुए कहा, सबसे मिलो, ये क्या तरीका है सलाम करने का? वो बारी बारी सबसे मिलने लगी। छोटी नंद जरा अकड़ कर बोली, भाभी मैं इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ, अब आपको भी मेरे इन सब की तरह लाड उठाने होंगे। दरमियान वाली नंद काफ़ी रहमदिल थी। वो छोटी बहन से बोली, गुड्डो अभी तो तेरी भाभी नई नवेली दुल्हन है, अभी तो तुम इसके लाड उठाओ। गुड्डो नखरे से बोली, बस आज के दिन तक भाभी की छुट्टी है, फिर कल से ये मेरे सर पर तेल से मालिश किया करेंगी। रोजीना जवाब में खामोश रही तो जाफर ने रोजीना से कदरे बरहम लहजे में आहिस्ता से कहा, गुड्डो कुछ कह रही है, जवाब तो दो, तुम इसकी बात को अहमियत ही नहीं दे रही। तो वो डरकर जल्दी से बोली, जी हाँ मैं रोज़ कर दिया करूँगी। वो तंसिया बोली, ये बाजी क्या होता है, तुम मुझे बड़ा समझ रही हो, तुमसे मैं छोटी ही होंगी। दरमियान वाली नंद बोली, भाभी इसे बाजी मत कहना, इसे सख्त गुस्सा आता है, कोई आंटी वगैरह भी कह दे तो ये बुरा मनाती है, इसे छोटा बनने का शौक है। गुड्डो बुरा मनाते हुए बोली, मैं हूँ ही छोटी। वलीमे वाले दिन उसके सब मैके वाले और करीबी रिश्तेदार गांव आए तो इनका शानदार घर और शानदार वलीमा देख के काफ़ी मुतासिर हुए और कहने लगे कि रोजीना तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो उसे ऐसा पढ़ा लिखा अमेरिका में जॉब करने वाला शौहर मिला और इतने बड़े जिम्मेदार घराने में उसकी शादी हुई जिनकी ढेरों ज़मीनें देखकर वो तारीफ़ कर रहे थे, जबकि रोजीना उदास थी मगर अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ ने उसके पास आकर सरगोशी से पूछा कि बेटी सब खैरियत है ना, तुम खुश तो हो? वो माँ की अजमत पर दंग रह गई कि कैसे माएँ अपने बच्चों के दिल का हाल जान लेती हैं। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने भराई हुई आवाज़ में माँ से कहा, मामा आप सबको भूलना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब मैं मैके कम आया करूँगी और कम रहूँगी ताकि मेरा दिल ससुराल में लग सके। माँ ने अपने आंसू पूंछते हुए कहा, मैं सोच भी न सकती थी कि एक दिन में ही मेरी बच्ची इतनी समझदार हो जाएगी। रही बात मैके को भूलने की, तो लड़कियों की अमूमन 20-25 साल की उम्र में ही शादी हो जाती है और शादी के 30-35 साल बाद भी वो मैके को नहीं भूल पाती। बेशक अपने शौहर अपने बच्चों पर जान छिड़कती हैं मगर मैके की हर चीज़ से उन्हें लगाव महसूस होता रहता है। रोजीना ने माँ से कहा, मामा प्लीज़ दादी अम्मा से कहना और सब भाइयों से भी कहना कि कोई मुझे फ़ोन करके मैके आने का ना कहे और ना ही मैके मज़ीद रुकने का कहे, वरना फिर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कठिन हो जाएगी। मेरा अपना पूरा ध्यान ससुराल को खुश करने में लगाना चाहती हूँ मैं। माँ ने कहा, बेटा मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरी बेटी ही बोल रही है। उसे नज़र दौड़ाई तो उसकी सबसे छोटी नंद पास ही खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। उसने शुक्र किया कि उसने माँ से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। शौहर जब अमेरिका चला गया तो सवाए दरमियान वाली नंद के बाकी दोनों बड़ी और छोटी नंद ने उसका जीना हराम कर रखा था कि भाई उसे पसंद करके शहर से लाया और हमारा सारा ख़ानदान अंदर से
हमसे रंज है कि हमने उनकी बेटी नहीं ली, मगर क्या करें, भाई जो इस साफत के ऊपर लट्टू हो गया था। अब इसे पता चलेगा गांव में शादी करने से गांव की तरह ही बन कर रहना पड़ेगा। रोजीना की सास को इसकी दोनों नंदे कान भरती रहती थी और भाई को भी वो शिकायत लगाती रहती थी कि भाभी रोजीना को कुछ नहीं आता। शोहर उसे सुबह शाम फ़ोन करके डांट भरे अंदाज में समझाता रहता कि मेरे घर वालों को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो जवाब में सॉरी बोलकर कह देती कि वो कोशिश करेगी घर वालों को भी कभी किसी तंज का पलट कर जवाब न देती। वो मुफ्त में बदनाम हो गई थी कि इन दोनों की प्यार की शादी है। रोजीना सोचती कि इसने तो कभी शादी से पहले जाफर से बात तक न की थी। इसकी शादी के 10 दिन बाद उसके दादा फोत हो गए। उसे वहाँ रहने की इजाज़त न थी। वो ससुराल के साथ गई और साथ ही वापस आ गई। मेहमानों की तरह जुमेरात वगैरह पर जाती और ससुराल के साथ वापस आ जाती। एक दरमियान वाली नंद उसकी दिलजोई करती रही। महीने के बाद 2 दिन रहने जाती, लेकिन सुबह शाम सास फ़ोन करती और लंबी लंबी गुफ्तगू करती। शोहर भी ऐसे ही करता। रोजीना के घर वालों को रोजीना के ससुराल वालों के रवैये का अंदाज़ा हो चुका था। रोजीना के पापा ने जब बेटी से बात करने की कोशिश की तो वो बुरा मनाकर मना करने लगी कि मैं ठीक हूँ। तब रोजीना के पापा ने दामाद से ज़रा रोब से बात की कि शादी को 5 माह हो चुके हैं, हमारी बेटी को गांव में रहने की आदत नहीं। अगर तुमने फौरी तौर पर उसे ना बुलाया तो मैं बेटी को घर बुला लूँगा और इंतहाई कदम भी उठा सकता हूँ। ये ना समझना कि वो लावारिस है। आजकल वो ज़माना नहीं है कि बेटी से कहा जाए कि जो भी हो बस इस घर से तुम्हारा जनाजा निकले। मैं अपनी बेटी पर एक आँच नहीं आने दूंगा। मैंने बेटी गांव में रहने के लिए नहीं दी, बल्कि अमेरिका रहने के लिए दी है। जाफ़र पहले तो सुनकर काफ़ी हैरान हुआ। उसे तो अंदाज़ा ही ना था कि रोजीना के लिए उसके पापा ऐसी धमकी अमेज़ बातें करेंगे। वो भी अंदर से डर गया कि वाकई अगर रोजीना उसकी ज़िंदगी से चली गई तो वो किसके लिए जिएगा। उसे रोजीना की याद हर पल सताती थी। अपनी नई नवेली दुल्हन को इतनी जल्दी छोड़कर आना आसान न था, मगर वो अपनी माँ के रूप में आया हुआ था, वरना काम तो जल्दी हो गया था। मगर वो अपनी माँ के डर से बुलाने से डरता था। उसने रोजीना के पापा से कहा, अंकल मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था कि काम हो गया है, मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ था। रोजीना के पापा ने कहा, ये मेरी और अपनी गुफ्तगू का जिक्र मेरी बेटी से मत करना, क्योंकि मैंने ही उसे लेक्चर दिया था कि जैसे भी हालात हो मैं के रूट कर मत आना। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इतनी साबिर है कि वो इतना कुछ सहने के बावजूद किसी बात का शिकवा जुबान पर नहीं लाती, ना ही ज़्यादा मैके आती है। हर वक्त डरी सहमी और परेशान रहती है। हम अंधे नहीं हैं कि वो कुछ नहीं बताती तो हमें नज़र नहीं आता कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। हमने तुम्हारे घर वालों से झगड़ा चाहते हैं और ना बेटी को उनसे लड़वाना चाहते हैं। चाहते हो कि दोनों में सलूक बना रहे तो बीवी को हमेशा अपने साथ रखो, मगर एक साहिबान बनकर ना कि दूसरों की गुलामी करवाते रहो। वो खिदमत करे, जी जान से करे, मगर उसे ज़हनी अजियत ना दी जाए और ना ही जिस्मानी। उसे इतना ही काम लिया जाए जितनी उसकी हिम्मत है। जाफ़र ने वादा किया और रोजीना शोहर के साथ शादी के बाद अमेरिका आ गई और उससे अपना वतन, अपने तमाम घर वाले बहुत याद आते थे। इसके घर में दादी, वालदैन, 3 भाई, 3 भाभियाँ और उनके 2-2 बच्चे सब एक ही घर में रहते थे। और इस वक्त उसे इतना शोर शराबा और इतने लोगों में रहना पसंद न था। वो चाहती थी कि तीनों भाई अलग अलग घरों में रहें, फिर वो कभी एक भाई के घर जाए तो कभी दूसरे और कभी तीसरे। अब अमेरिका में वो और सिर्फ उसका शोहर रहते थे। सारा दिन अकेली घर में बोर होती रहती थी। सवाए इसके शोहर के बाकी सब ससुराल वाले पाकिस्तान में मुकीम थे। रोजीना एक खुशहाल घराने में पैदा हुई। 3 भाइयों से छोटी और लाडली बहन थी, क्योंकि वो भाइयों की इकलौती बहन थी। इसके पापा भी इस पर जान छिड़कते और इसकी हर फरमाइश को पूरा करते थे। रोजीना की दादी भी हयात थी। जब तक दादा जिंदा रहे रोजीना को किसी ने कुछ कहने की जरूरत न की और भाभियाँ भी सुसर से दबती थीं, क्योंकि रोजीना के भाई कम तलीम याफ्ता थे और छोटी उम्र से ही बाप के साथ बिजनेस में लग गए थे। और फिर एक ही घर से तीनों बहनों का रिश्ता हो गया। वो भी बहुत खुश थीं। सुसर का सब पर बहुत रौब था, क्योंकि बेशक उन्होंने अपने इकलौते बेटे को सारा बिजनेस सौंप दिया था, तो उसने भी अपनी मदद के लिए अपने तीनों बेटों को साथ मिला लिया। मगर पैसे के लेन देन का सारा मामला रोजीना के दादा के हाथ में था। वह असूल पसंद और सख्तगीर तबीयत के मालिक भी थे। अपने पोतों की भी छोटी उम्र में ही शादी कर दी। बहुएं भी सुसर से दबती थीं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। रोजीना की दादी अपने 3 पोतों पर बहुत फख्र करती थी, जबकि रोजीना के बाप और दादा को बेटी की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से रोजीना की पैदाइश से लेकर उसके जवान होने तक उसको घर के किसी काम को करने की इजाज़त न थी। दादा इस बात से खुश थे कि वो भी मैट्रिक तक पढ़े हुए थे। फिर बेटे ने भी मैट्रिक के बाद बाप का बिजनेस में मददगार बन गया। फिर उसके तीनों बेटों को भी पढ़ाई से कोई दिलचस्पी न थी। वो भी मैट्रिक करने के बाद बाप के साथ बिजनेस में लग गए, जबकि उसके बरक्स रोजीना को पढ़ने और डॉक्टर बनने का बहुत शौक था।
تو इसके बाप दादा ने इसकी हौसला अफजाई की और उसको पढ़ने के दौरान पुरसुकून माहौल दिया। इसका कमरा भी ऊपर वाले पोर्शन में था। किसी की जरूरत ना थी कि कोई उसके कमरे में उसकी इजाज़त के बगैर जा सके। बच्चे शोर भी मचाते तो अगर वो कह देती कि वो पढ़ रही है तो भाभियों को दादा कहते कि वो बच्चों को कमरे से बाहर न निकलने दे। अब अमेरिका में बैठी वो सोच रही थी कि उसने अपने लाडलेपन में अपनी भाभियों को कितना तंग किया। जब वो खुद गांव में रही तो 5-6 माह में उसका लाडलापन सब निकल गया और उसकी ज़िंदगी की हकीकत पता चली। कौन सा दिन था जब वो रात को रोकर नहीं सोती थी। बड़ी नंद अपना बच्चा उसके पास सुलाने भेज देती थी और जब तक वो बच्चा या बच्ची जागते रहते वो कुछ ना कर सकती थी क्योंकि वो सारी रिपोर्टें देते थे। सास अंदर से कुंडी भी नहीं लगाने देती थी कि हम सब दरवाज़ा खोल कर सोते हैं, इधर कोई डर नहीं। एक दिन भी उसे पूरी नींद सोने का मौका ना मिलता था। दादी उसे बहुत याद करती थी। जब शौहर ने माँ को फ़ोन करके उसके जाने का बताया तो वो बेटे से बहुत लड़ी, मगर उसने जब रोजीना के पापा के फ़ोन के बारे में सब बताया तो बेटे ने एहसास दिलाया कि अगर उन्होंने बेटी को खुला दिलवा दी तो हमारे पूरे ख़ानदान में जग हंसाई होगी। अब इसको अपनी मर्जी पर चलाना छोड़ दें। वो घर भर की लाडली है, अगर उसने घर वालों को बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। तब माँ अंदर से डर गई और अपनी बेटियों को भी समझा दिया और सबने काफ़ी रवैया बेहतर कर लिया और आने से पहले उसे दादी के कहने पर 1 हफ्ते के लिए मैके छोड़ दिया गया। जब वो मैके आई तो उसे लगे जैसे वो जन्नत में आ गई है। रोजीना के पापा ने उसके शौहर को कह दिया था कि बिला वजह कोई उसे फ़ोन करके तंग ना करे। अब इधर से किसी का फ़ोन ना आता तो रोजीना खुद रोज़ सबको फ़ोन करके हाल अहवाल पूछती, बच्चों का भी पूछती। वो बहुत खुश होते और अपने रवैये पर पछताते। रोजीना ने भाभियों से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे गले लगा लिया और बहुत प्यार किया। बच्चे बहुत खुश थे कि पुप्पो आई हुई हैं। दादी पास से उठने न देती, पास सुलाती। रोजीना के पापा ने जाफ़र को उसे मज़ीद पढ़ाने का भी कहा। उसने उसी वक्त उसके दाखिले की कोशिश का वादा किया। इसके भाई भी उसको बहुत प्यार से वक्त देते। सोने तक सब उसके पास बैठे रहते। रोज़ उसकी पसंद की भाभियाँ खाने बनाती। रोजीना को अमेरिका में वो खाने याद आते थे। उसे जाफ़र की तरफ से भी अच्छा बर्ताव मिल रहा था। माँ सवाए इसके कि जब घर से फ़ोन आता तो माँ बहनें उसके कान भर देती थी तो वो वक्ती तौर पर उससे उलझ पड़ता और वो जवाब में खामोश रहती थी। फिर वो खुद ही शर्मिंदा होकर उससे रवैया दुरुस्त कर लेता था। फिर उसे घुमाने ले जाता। जल्द ही उसका दाखिला भी होने वाला था। आस पड़ोस में भी काफ़ी पाकिस्तानी लोग रहते थे और गाहे बगाहे एक दूसरे से मिलते रहते थे। कुछ दिनों से शौहर का रवैया भी अजीब हो रहा था, मगर वो इसकी हर बात मानती थी। जानती थी कि वो वक्ती गुस्सा करता रहता है मगर दिल का बहुत अच्छा है। इसके शौहर के पास एक औरत रोज़ आती, कुछ अजीब जुबान में बातें करती तो जाफ़र उसे कहता कि अपनी मैली कमीज़ उसे दे दो। वो चुप करके दे देती और वो $100 उसे पकड़ा देती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे इशारतन कहा कि तुम कोई इज्जत वाला काम भी कर सकती हो, ये नौकरी छोड़ दो। उसे शक होने लगा तो उसने अगले दिन बहाने से शॉपर में शौहर की मैली शर्ट डाल दी तो रात को उसे ये देखकर बहुत हैरत हुई। उसने आंखें खोलकर देखा कि उसका शौहर बिस्तर पर लेटा चीख रहा था। उसने उसे बामुश्किल चुप करवाया और उसे पानी पिलाया तो उसने उसे सॉरी बोलते हुए बताया कि वो उसकी मैली शर्ट $100 में सेल करता था क्योंकि इसी इलाके के एक छोटे एरिया में खारिश की बीमारी लग गई है। एक दिन घर के बाहर एक लड़की के कपड़े गीले हो गए तो मैंने उसे तुम्हारी मैली शर्ट ही जल्दी से पकड़ा दी। वो उसने पहन ली, तुम सो रही थी। उसने $100 पकड़ा दिए। मैं बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने आकर बताया कि इस मैली शर्ट से उसके जिस्म की खारिश ठीक हो गई है और उसे और लोगों के लिए भी तुम्हारी बीवी की मैली शर्ट चाहिए। मैं इसके बदले $100 दूंगी। इस तरह मैं उसे तुम्हारी मैली शर्ट देने लगा, मगर अब ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इस लड़की को सिर्फ वहम था कि तुम्हारी मैली शर्ट से वो ठीक हो गई, मगर दूसरों को कुछ अफाका न हुआ। तुमने उससे मेरी शर्ट दी तो उसे पहने से उसे दोबारा खारिश होने लगी। अब वो मुझे धमकियाँ दे रही है और अपने पैसे वापस मांग रही है। मैंने उसे तुम्हारी शर्ट्स वापस देने का कहा है और उसे उसके पैसे वापस दूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था। इस लड़की ने अब इलाज करवाया तो वो बेहतर हो रही है। आज वो शर्ट्स वापस देने आएगी और अपने पैसे वापस लेकर जाएगी। मैं शर्मिंदगी से रो रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं। उसने तसल्ली दी और माफ़ कर दिया। रोजीना ने मज़ीद स्पेशलाइज कर लिया। इस दौरान उसके 2 जुड़वां बेटे भी पैदा हुए। जाफ़र बहुत खुश था और उन्हें पालने में रोजीना की मदद भी करता था। जाफ़र ने भी उसके साथ पढ़ाई की। अब वो दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जॉब करने लगे। रोजीना की दादी फोत हो चुकी थी। 5 सालों में वो लोग एक बार फिर पाकिस्तान नहीं गए थे। वीडियो कॉल पर सबसे बातचीत होती रहती थी। रोजीना ने जाफ़र से कहा कि हमें मुहिब्बे वतन बनकर सोचना चाहिए और अपनी तालीम का अपने मुल्क के लोगों को फ़ायदा देना चाहिए। थोड़ा खा लेंगे मगर इज्जत से अपने मुल्क में बच्चों को परवान चढ़ाएंगे और वालिदैन और अपने बहन भाइयों को एक छोटी शान शौकत और पैसे के लिए अपनी जुदाई का गम नहीं देंगे। हमारा मुल्क तब भी संवरेगा जब हम सब मिलकर इसे संवारने की कोशिश करेंगे, ना कि हुक्मरानों से आस लगा कर बैठे रहेंगे।
उसे भी एहसास हो गया। वो लोग जब पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर रोजीना के सब मैके वाले और जाफ़र के सब घर वाले बहन बहनोई आए हुए थे। सब तड़प कर मिले और जब घर जाने का वक्त आया तो रोजीना ने अपने मैके वालों से माजरत की कि वो पहले गांव जाएगी, फिर 2 दिन बाद वो 2 दिन के लिए मैके आएगी। इसके पापा ने खुश होकर कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, मगर जाफ़र ने सबको साथ गांव चलने पर जोर दिया और सबको साथ गांव ले आया। 2 दिन उसने इन लोगों को आने न दिया। गांव वालों ने भी इनकी बहुत इज्जत की। रोजीना ने सबको तोहफे दिए। अपने मैके वालों के लिए जो वो तोहफे लाई थी वो जाफ़र ने खोले न दिए कि मैके जाकर देना। अपने घर वालों को भी खुफिया दिए। 2 दिन गांव में सबको बहुत मज़ा आया तो रोजीना ने कहा कि अब वो हफ्ते बाद आएगी क्योंकि आप लोगों से मिल लिया है और अब गांव वाले मिलने आ रहे हैं। जाफ़र और उसकी सास उसके फैसले से बहुत खुश हुए। जब तक इन्हें शहर में कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती वो गांव में रहेंगे। बच्चे बहुत खुश थे। अब रोजीना की सास नंदे भी उसकी पर्सनालिटी के आगे दबने लगी थी और कुछ न कहती थी क्योंकि वो मुसलसल इनके साथ अच्छी थी। बाप ने खुश होकर अपनी ज़मीनों के ऊपर एक हॉस्पिटल की तामीर शुरू कर दी। रोजीना और जाफ़र शहर में एक अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए थे और रोजीना के कहने पर वो हर वीकेंड गांव में गुजारते और गांव के हॉस्पिटल पर तवज्जो देते। इसमें पूरा अमला डॉक्टरों और नर्सों का रखा और जदीद मशीनें भी लगाईं और गांव के ऐसे गरीब लोगों का फ्री इलाज करते जो वाकई फ़ीस अदा नहीं कर सकते थे। अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर डॉक्टर्स बनाया और उनको भी गाँव से उनसियत डाली और ये रवायत जारी रखी कि जो भी फ्री वक्त मिले वो अपने गाँव में गुजारना चाहिए और अपने हॉस्पिटल पर भी तवज्जो देनी है। रोजीना के पापा अपनी बेटी पर फ़ख्र करते और पछताते कि उन्होंने बेटियों की तालीम पर तवज्जो न दी, मगर अपने पोते पोतियों को आला तालीम दिलाई और इनको भी डॉक्टर इंजीनियर बनाया। रोजीना की भाभियाँ रोजीना को दुआएं देती थी, जिसने ज़बरदस्ती उनको अच्छी तालीम की तरफ राग़िब करवाया और उनकी मदद भी करती, उनको तालीम के फ़ायदे समझाती। जाफ़र अपने आप को खुशकिस्मत समझता जिसको रोजीना जैसी बीवी मिली। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।